Hi everyone, so welcome to this session. My name is Dhiraj Misra and I have been guiding for GATE Computer Science, Data Science and AI and Electronics and Communication, Electrical Engineering, Instrumentation, Aerospace Engineering, for GATE exam, right? Now we have got, around 10 days, you can say 10 to 12 days for GATE Electronics and Communication as well as you can say for data science and AI as well as aerospace engineering, right? These are the major branches that I guide. Okay, so already the IIT Roorkee has concluded GATE computer science, GATE instrumentation engineering, GATE electrical engineering, mechanical engineering, all those branches that we have been guiding for, right? So what I observed was, if coming to aptitude and mathematics, so they are asking quite easy question compared to all years, right? Okay, straightforward questions where you don't have to waste much time. Okay, if you have solid understanding of concepts, you can easily solve the question. In fact, some questions are not in fact required to derive much. Okay, and formula based approach is failing over there, right? You have to balance the pressure and the anxiety along with your learning. Okay, please remember that during the examination many students failed to solve many questions despite the paper was straightforward and easy. Okay, people sometimes call it moderate, difficult, all these things, but I don't want to use those words. Since you have prepared for GATE examination, so the paper must be according to you, right? And paper was according to you, right? There was no question where you can some question might be lengthy, you can leave them. Okay, it is not needed to solve 65 questions, but yes, 50 to 55 questions, if you are prepared well, you can easily solve it. But if you are able to manage your pressure, anxiety, kind of expectation that you have from the GATE examination, okay, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 3 घंटे में सारी चेक हो जाती हैं, along with your aptitude, along with your mathematical skills, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ्स से भागते हैं, so they are not able to do aptitude, they are not able to do engineering mathematics questions, they are not able to uh, do any sort of manipulation while solving the gate question, क्योंकि gate question इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट हाँ, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हाईली कंसेप्चुअल हैं, थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन करना है और आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता है, बट सारी चीजें बैलेंस करते हुए। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रेशर नहीं फील करना है 3 घंटे, अभी आप प्रेशर फील करो जो भी करना है, बट उस 3 घंटे में आपका फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने में होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, सो प्रॉपरली रीड करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना है और उसको प्रॉपर हर एक पेज में सॉल्व करते जाना है, रैंडमली सॉल्व नहीं करना है कि यहाँ पर कुछ लिखा वहाँ कुछ लिखा। ठीक है, ये चीज़ें आई हैव सीन मैनी एस्पायरेंट हैज फेस्ड, राइट, कि दे आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन एंड दे आर नॉट रीडिंग प्रॉपर क्वेश्चंस, और कुछ भी रीड करके कुछ भी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको ही पेनलाइज, आपका ही मार्क्स पेनलाइज होने वाला है, आपका ही स्कोर कम आएगा, राइट? तो मेरा सजेशन ये रहेगा अब गेट डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस के लिए, कि आप लोग चिंता मत करो, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके पेपर में जहां पर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड 1 इंच लॉन्ग फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं, लेकिन सम इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस यू शुड नो, स्टैंडर्ड इक्वेशंस बस। और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आपने जो गो थ्रू किया है, कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए उसको याद रखिए। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े 1 इंच लॉन्ग फॉर्मूले के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, हाँ, कोई भी फॉर्मूला है उसमें जो भी पैरामीटर उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए, राइट, कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एमएसक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और इफ यू कैन रिमेंबर दोज रिलेशनशिप्स तो वो आपके लिए हेल्प करेगा, रादर देन रिमेंबरिंग इंटायर एक्सप्रेशन, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें जो यू नो आपने फॉर्मूले ऑब्टेन किए हैं, तो होपफुली कि आपको डेराइवेशन पता होगा। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको थोड़ा सा रीड करना है क्वेश्चंस, एंड मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर
बेसिक मैथमेटिकल स्किल। आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन में, जो कि बहुत ही, जैसे ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, लेट्स से यू गॉट दी रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अब उसका ग्राफ क्वेश्चन में आया था, तो अब आपको पता होना चाहिए कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो इजिली जो स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में आप इजिली 25 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। फिर नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस, ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, तो आप समझ सकते हो कि उसका भी लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, डिले बेस्ड क्वेश्चंस, सेटअप होल्ड टाइम, ओके, टाइमिंग एनालिसिस से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्यूटी साइकिल बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजिटल से, ठीक है। और आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बूलियन अलजेब्रा पता है बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन एक फिक्स है, राइट। एनकोडर डिकोडर से भी क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर 24 में प्रायोरिटी एनकोडर से आया था। सो मैथ्स से आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सीख लेना है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से सर्टेनली एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा से भी 100% क्वेश्चन रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी रहेगा। डबल इंटीग्रल से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ये हमारा प्रेडिक्शन है। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी से, रैंडम वेरिएबल से आपका क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ब्लड रिलेशन, क्लॉक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। नंबर सिस्टम है ना। और इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन आता है, आप PYQ सॉल्व करके आप उसको निकाल सकते हैं, राइट। थोड़ा सा बेसिक ग्रामर जो आ रही है। तो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं, आप एक बार रीड करेंगे। हाँ, आप अभी 12 दिन में अपने आप को ऐसा रेडी करो कि आप क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करो, आपको 2-3 बार चेक ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स मैंने देखे हैं कि उनको एक क्वेश्चन को 2-3 बार चेक करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, प्रेशर और निगेटिव थिंकिंग, है ना, एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन। एग्जाम के दौरान आपको एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखना है कि हमारा क्या होगा, कैसा होगा, क्या बोलेंगे लोग। क्योंकि एग्जाम आप इतना तैयारी करते हो, आप टेस्ट देते हो, आप इतना इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन 3 घंटे में अगर आप परफॉर्म प्रॉपरली नहीं करते हो तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। मैंने जैसे सेट 1 में मैं खुद अपियर हुआ था कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने देखा कि जो इजी क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी अपन 2 से 3 बार देख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो टफ नहीं है, बट आपको बिलीव करना है। और ये क्यों हो रहा है, 2-3 बार हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहे हैं। और जिस पेज में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी पेज में हम प्रॉपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। हम कुछ भी डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लिखने का, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, प्रॉपर लिखिए, भले ही वो क्वेश्चन 2 मिनट 3 मिनट ले ले, राइट। मैं आपको इजली बता देता हूँ, 180 मिनट होते हैं, 180 मिनट, 65 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगर आप 55 क्वेश्चन करना चाहते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं कि आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर में 1 मिनट लग ही जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, दे माइट टेक योर 3 मिनट्स। तो अगर आप 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50 × 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 मिनट होता है, ठीक है। तो आप 55 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस 3 मिनट 4 मिनट लेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जैसे कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको थ्योरी रहता है। तो आपको बस क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन आपको ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने हैं पहले ही, फिर उसके बाद आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो आपको केवल और केवल 50 to 55 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, अगर आप IIT ISC में जाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आपको IIT ISC के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन में हो सकता है आपने 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा किए हों, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू के टाइम जो है तो इजी क्वेश्चंस तो ठीक है, जैसे आपकी तैयारी सारी है, ठीक है, तो आप 2 मार्क के क्वेश्चन को ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का 2 मार्क क्वेश्चन के साथ। और लास्ट में क्या होता है कि हम हरी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गलत भी हो जाते हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन अगर गलत भी होते हैं या कि आप उनको छोड़ भी देते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन एप्टीट्यूड एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं। जब लेट से आप मुझे कॉल करोगे गेट एग्जामिनेशन के बाद
और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, सर मैंने 25 क्वेश्चन 2 मार्क के किए हैं और एप्टीट्यूड मैंने किया है, तो हम समझ जाएंगे कि आपका अच्छा स्कोर आने वाला है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, आप लोग जो टेस्ट सीरीज दिए हो उसमें बहुत ही इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी आपने फेस किए हैं और बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस, कहीं भी ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है कि 2-3 लाइन में आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मुझे पता है, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज की आप बात कर लो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हुआ कि आपने मार्क्स स्कोर नहीं किया, डज नॉट मैटर। गेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी इजी, मैनिपुलेशन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, सर्किट को आइडेंटिफाई करना है, मैथमेटिक्स जो आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, राइट, सिंपल एंड स्वीट, ओके, जहाँ पर आपको ज़्यादा लेंदी अप्रोच नहीं करना है अप्लाई, ठीक है। हाँ, बस आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, आपका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स नहीं पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट वो पता होनी चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट सीक्वेंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो हैं तो उनको सबसे पहले सिग्नल एंड सिस्टम पूरा पढ़ लेना है। सिग्नल एंड सिस्टम का पूरा एप्लीकेशन आपको कंट्रोल सिस्टम में मिलने वाला है और पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको नेटवर्क थ्योरी में भी मिलेगा, ठीक है। तो एलटीआई सिस्टम का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी सिग्नल एंड सिस्टम से मोटिवेटेड है। हाँ, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम वेरिएबल आपको नहीं आता, आप सोचो कम्युनिकेशन में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। एनालॉग कम्युनिकेशन ठीक है, पावर एंड ऑल निकालने के लिए आएगा, बैंडविड्थ निकालने के लिए आता है, लेकिन अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो थोड़ा बहुत रैंडम वेरिएबल आपको आना चाहिए। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ये सारी चीज़ें, मीन, और जितने भी टाइप के डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आपने देखे हैं, जैसे कि AWGN की हम बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो ठीक है। सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कंप्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अभी टाइम है, ठीक है, लेकिन मैथ्स अच्छा होना चाहिए इसके लिए। फिर उसके बाद बात आती है ये सब्जेक्ट हो जाते हैं, आप डिवाइसेस पढ़ सकते हो, आप एनालॉग सर्किट पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एनालॉग में सर्टेनली एक क्वेश्चन गेन का आने वाला है, मॉसफेट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मॉसफेट दिया रहेगा, हो सकता है आउटपुट रेजिस्टेंस पूछ ले, जैसे इलेक्ट्रिकल में पूछा था, एक मॉसफेट दिया है ना, कैस्कोड एम्पलीफायर दे सकता है, आउटपुट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो एक गेन का क्वेश्चन फिक्स है। ओपैम्प से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसमें ट्रिगर से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो एनालॉग सर्किट, डिवाइसेस, और आपका फिर बचता है आपका ये क्या कहते हैं, आई थिंक मैंने सारे सब्जेक्ट का नाम ले लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपको एंटीना के फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, कैसे पैटर्न ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो भी एंटीना पैरामीटर्स हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा एंटीना में, ठीक है। वेव गाइड्स, ट्रांसमिशन लाइन, मैक्सवेल इक्वेशंस, एंड आपका जो ये है वेव प्रोपोगेशन, उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो आपको बाउंड्री कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला भूल भी जाता है तो आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, है ना, जैसे स्नेल्स लॉ का यूज करके, बाउंड्री कंडीशन का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स पूछा जाएगा। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट फार्मूला। केवल फार्मूला पता है तो इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में याद ही रहेगा। मैंने देखा है एक जॉनसन काउंटर का क्वेश्चन आया था, तो ठीक है वो जॉनसन काउंटर है, बट स्टिल माइंड में ये लगता है कि यार पूछा है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स फाइंड करना है, जिससे कि जो स्टार्टिंग आपका स्टेट है वो रिपीट हो। तो अगर आपको ठीक है याद आ गया, सर्किट प्रॉपर पता है, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है सर्किट में, मतलब कोई डेविएशन सर्किट में नहीं है, जो आपने एक्चुअल सर्किट देखा है, तो आप आंसर कर सकते हो। बट फिर वही बात है कि गेट में उस टाइम याद नहीं आता है, ठीक है, कुछ ही लोगों को याद आता है जो बहुत ही लकी लोग होते हैं, ठीक है। तो जहां याद नहीं आता तो आप करो, उसको कहते हैं बोल्ड बनना, कि आप यू नीड टू बिकम बोल्ड, राइट, आप बोल्ड हो करके पूरा सॉल्व करो, ठीक है। सो मेरा यही सजेशन है, गेट एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बहुत ही सिंपल आने वाला है। सिंपल इन द सेंस दैट कि पूरा सिलेबस आएगा, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत जो इक्वेशंस होती हैं वो याद होनी चाहिए, जैसे स्टेप रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन आता है, जो भी रेस्पॉन्सेस हैं ना, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। समटाइम्स उसका डायरेक्ट यूज़ करके आप आंसर 1-2 लाइन में निकाल सकते हैं।
ठीक है। सो मेरा यही सजेशन है गाइस कि आप लोग रिवीजन में फोकस करिए। अभी एक टेस्ट भी आप दे सकते हैं अगर देना हो, लेकिन टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है गेट एग्जामिनेशन से। टेस्ट का केवल रिलेशन होता है हाउ टू मैनेज टाइम, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा गेट एग्जामिनेशन के लिए, बस। बाकी गेट जो टेस्ट में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि यस दे माइट बी रेलिवेंट, बट बहुत सारे क्वेश्चन इरेलीवेंट होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता भी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करवा रहा है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, तो उससे वो नहीं आने वाला है, आप समझ जाओ, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस किस में होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को गेट एग्जामिनेशन में कैसे करना है। एक छोटा सा स्क्रिबल पैड रहता है, और आपको भी पता है कि छोटा सा स्क्रिबल पैड है, मतलब सोल्यूशन इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और आपको थोड़ा प्रॉपर लिखना है हर एक पेज में। आप स्क्रिबल पैड दोबारा ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि एक ही स्क्रिबल पैड आपको मिलने वाला है। तो आप जितने स्क्रिबल पैड यूज़ करना चाहें करें, बट हर एक पेज में एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छे से करिए, और ट्राई टू टेक लिटिल टाइम। आप 3 मिनट ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 55 क्वेश्चन का टारगेट करिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं, बट वो 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होने चाहिए, 2 नंबर के नहीं। अगर वो दो नंबर के हैं तब तो फिर लाइफ में बहुत ही इशू आने वाला है। तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन को लीव करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आप एग्जाम स्टार्ट करते हो 1 नंबर से, हो सकता है कि आप 1 नंबर से अगर चालू करते हो, मेरा सजेशन है आप वही क्वेश्चन करो जो आपको डायरेक्टली आ रहा है, कम टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, जल्दी से सॉल्व हो रहा है, आप वही क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर में ही 3 मिनट लगा रहे हैं। आप 1 नंबर को जल्दी से, लेट से आपका सीक्वेंस है ना, अगर आपका सीक्वेंस ही है माइंड में जो आपने मॉक एग्जाम में इंप्लीमेंट किया है कि हम एप्टीट्यूड के बाद 1 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इट्स ओके, यू डू इट। बट जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको 30 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। करो, नहीं आ रहा है मूव ऑन, राइट, क्योंकि आपको 2 मार्क में जाना है, ठीक है। तो आप 25 क्वेश्चन को स्कैन कर सकते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं कर दो, लेकिन 3 मिनट जिसमें लग रहा है उसको भूल जाओ, मत करो। 2 नंबर में 3 मिनट स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आप केवल करके आते हो, एप्टीट्यूड करके आते हो, तो टॉपर नहीं बनोगे, मतलब आपको आईआईटी ऐसी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा मिलना, ठीक है। ओके, मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो 35 या 30 मार्क्स उनको मिलता है तो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 2 मार्क के ज़्यादा हैं, जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, मतलब अभी ही इज एट आईआईटी मद्रास, मेरी अभी उससे 3-4 दिन पहले ही बात हो रही थी, तो ही सेड दैट कि ही अटेम्प्टेड 45 क्वेश्चंस, ठीक है, और उसका 10 रैंक आया था 2024 में, 67 मार्क्स। तो अब देखो उसने 45 क्वेश्चन किया, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो कि उसने नहीं देखे थे, या कि ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, या कि ये मुझसे आता ही नहीं है, ठीक है, तो उसने उसको ट्राई ही नहीं किया। ये सबसे अच्छा वाइज डिसीजन होता है। आपको ईगो में नहीं लेना है कोई भी चीज़, कह रहे यार ये क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, डिवाइसेस का है, मुझसे सारी डिवाइसेस आती है। अरे डिवाइसेस का है माना, कम्युनिकेशन का है माना, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो प्लीज़ डोंट टच इट, भूल जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप 30-60-90 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। 30 सेकंड में अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मूव करिए, वेस्ट मत करिए टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी, प्रोवाइडेड आपका थारो रिवीजन होना चाहिए 10 से 12 दिन में। अभी आप 10 से 12 दिन में टॉप 10 रैंक भी निकाल सकते हैं। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं कि जो अभी सोच रहे हैं कि यार अभी हम तैयारी चालू करें, उनके लिए नहीं है ना। टॉप 50 टॉप 100 में रैंक आप आराम से निकाल सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो सेंटर में देखा, बहुत सारे लोग सीरियस नहीं रहते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, वो बस जाते हैं। उनसे अगर आप पूछोगे कि यार तुमने ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया, डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन किया, तो वो बोलेंगे नो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मुझे मैथ्स में इतना, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, उनका गोल ही नहीं है इतना अच्छा रैंक लाने का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ते हो आपको लॉस है, दूसरा बच्चा तो कर पा रहा ना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सिंपल है, अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो आपको करके आना चाहिए, ठीक है। डिजिटल में बहुत सारे टूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे के मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है,
जल्दी से के मैप ड्रॉ करिए, आंसर निकालिए, राइट। जैसे डिवाइसेस में एनर्जी बैंड डायग्राम है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो फिक्स स्ट्रक्चर हैं कि हाँ पोलराइजेशन अगर आपको फाइंड करना है तो ये करना होता है, जेड को फिक्स करना होता है, टाइम को वेरी करना होता है, और फिर लोकस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है। तो चीज़ें फिक्स हैं। जैसे पैटर्न अगर एंटीना में देखते हैं तो उसमें भी फिक्स्ड है सारी चीज़ें, ई प्लेन, एच प्लेन, है ना, ये सारी चीज़ें, थीटा फाई, अरे फैक्टर, सब कुछ सारा का सारा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ओके और एनालॉग सर्किट में भी सारी चीज़ें फिक्स हैं। आपको एनालॉग सर्किट में इतना ज़्यादा एग्जाम में एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपना सोल्यूशन डालते हैं उसमें, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप मार्केट में देखोगे कि एक क्वेश्चन को कम से कम 2 घंटा सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 घंटा सॉल्व करते हैं। वो एग्जाम में पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, ठीक है। आपको एग्जाम में 2 से 3 मिनट ही मिलेगा, आप 2 घंटा एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और आप लोग इंसेनली उन लोगों को फॉलो भी करते हो, आपको लगता है कि अरे भाई, बट वो एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होगा, अच्छी बात है, बट आप किसी भी एक सीनियर टीचर को नहीं देखोगे जो बंदा एक क्वेश्चन को कम से कम 2 घंटा एक्सप्लेन करे, ठीक है। होपफुली यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। या कि तो आपको 2 घंटे वाले सॉल्यूशंस को इग्नोर करना है, हार्डली 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को अगर आप, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। इनफैक्ट इंटरव्यू में आपको 2 घंटा नहीं दिया जाता एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नहीं बता पा रहे हो, आगे का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया तो आपको बोला जाएगा जाइए। क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, जैसे प्रोफेसर शांति एंड ऑल ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो जब मैं एज ए स्टूडेंट मतलब अपियर होता था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा कि दे आर इंटरेस्टेड टू टेक मी, बट माई इंटरव्यू शुड गो वेल, राइट, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा था कि ठीक है ना, इनिशियल डेज में सबके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, बट अब अगर इंटरव्यू मैं देता हूँ तो ऑब्वियसली वी कैन क्रैक इट, ओके। सो आप समझ जाओ कि इंटरव्यूज में भी इतना टाइम नहीं, तो गेट एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम आपके पास नहीं रहता कि यार 3 घंटा 2 घंटा सॉल्व करें, ठीक है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर, तो आपका टारगेट 50 to 55 होना चाहिए। 2 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, एप्टीट्यूड के बाद 2 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आते हो, 1 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 नंबर के कम क्वेश्चन, लेट से दैट 25 क्वेश्चन 1 मार्क के, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, मतलब आप समझ जाओ कि ये 40 मार्क्स, ठीक है। तो आपने कितने 35 क्वेश्चन किए, फिर 15 क्वेश्चन अगर आप 2 मार्क के करते हो 30 हो गया, ठीक है। तो आपका 40 + 30 70 मार्क्स का अटेम्प्ट है, राइट। ये भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 मार्क के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। तो 20 क्वेश्चन 2 मार्क के, एक मार्क के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एप्टीट्यूड पूरा कर सकते हैं अगर आप 2 मार्क के छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आप 2 मार्क के क्वेश्चन मत छोड़िए, अगर वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं देखा, या कि एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। आउटलायर्स कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं आजकल, मतलब जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि केवल रिसर्चर या कि जो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं उन्हीं लोगों को पता होता है, ठीक है। जो मतलब है ना एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, है ना। सो आउटलायर्स जो क्वेश्चंस हैं, आउटलायर्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हो। इनफैक्ट जो ऑल इंडिया 10 रैंक लाया था, तो उसने भी बोला कि मैंने वो आउटलायर्स कॉन्सेप्ट या एडवांस क्वेश्चन मैंने टच ही नहीं किए थे, मैंने सोचा कि करेंगे, बट उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेरिवेशन था तो मैंने उसको लीक कर दिया। उसने केवल 45 क्वेश्चन किए, उसके 67 मार्क्स आए। हाँ, आप अगर 45 क्वेश्चन करके आ रहे हो, मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन करके आ रहे हो, एक्यूरेसी, बाहर आके आप सोल्यूशन देखते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे यार ये मिस हो गया, ठीक है। तो अभी 12 दिन है, आप 12 दिन में अपने आप को रेडी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर आप देख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्टली रीच आउट करिए, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस एंड एआई, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में किसी ब्रांच को के एस्पायरेंट को कोई भी डाउट हो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस एंड एआई, एज वेल एज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। थैंक यू।